प्रभु का आभार मानते हैं जो भाई विजय के जरिए हमें सुनने मिला। We are grateful to God what we heard from Brother Vijay. नए करार के विषय में कई बार हमारे कलीसिया में हम सुनते हैं About the new covenant, we hear many times in the being preached in the church. कि नए करार की जरूरत परमेश्वर को क्यों पड़ी थी। Why did God need a new covenant? जब परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, बाइबल कहता है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। Because when God gave the law, the Bible tells us that the law defines sin. सो पौलुस कहता है कि ये 10 कमांडमेंट से 9 में कर पा रहा था, एक में मैं फेल हो रहा था। Paul was saying that out of the 10 commandments, I was able to keep 9, but I was failing in 1. जो 9 कमांडमेंट तो जो भारी तौर पर था, जो खून मत करो, माता पिता का आदर करो, मूर्ति पूजा मत करो, ये सब भारी तौर पर था, वो कर पा रहा था। Of the 10 commandments, the outward commandments that honor your father and mother, don't make any idol and worship it. The commandments which required an outward action, I was able to do. So हो सकता है ऐसे कुछ बातें हैं जो हम कर पाएंगे अपने So तरीके से। So it may be that there'll be some things that we'll be able to do with our own strength. देखो वो एक फरीसी खड़ा था और दूसरा चुंगी लेने वाला। जो फरीसी खड़ा था वो भी बोल रहा था कि मैं तो तेरा सब आज्ञा पालन करता हूँ। So even in the story of the Pharisees and the tax collector, the Pharisee was praying that I keep all my commandments. लेकिन परमेश्वर का नजरिया हमारा नजरिया सेम नहीं है। But the way God looks at us is not the same way that we look at us. हम सोचते रहेंगे कि हम एक अच्छा परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है वो महत्वपूर्ण है। We may think that we're living a good and perfect life, but it is more important what God thinks of us. जो 9 चीज था वो भारी तौर पर है, लेकिन जो 10वां चीज है वो अंदरी चीज था। The 9 commandments which were the outward action that we be able to keep, but the 10th commandment that required an inward action. और वो चीज है लस्ट, And that is lust. जो हमारे भीतर से आता है। That which comes from within. किसी की चीज मत लेना, लेकिन हमारे अंदर आता है अरे वो मुझे चाहिए था। That we may not be, we don't take other things, but we may have that desire that, oh, I wish I had that. और ये हम बदल नहीं पा रहे थे। And that we are not able to और change. परमेश्वर ने वो देखा। And God sees that. और परमेश्वर के नियम में ऐसा नहीं देखेगा प्रभु, अरे ये तो मेरा 9 नियम मान रहे हैं, एक छोड़ देता हूं मैं। And in God's eyes, God doesn't see that, okay, he's keeping 9 commandments, only one he's living, so it's okay. नहीं, परमेश्वर के नजर में हर वचन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने 10 थे। In God's eyes, all 10 commandments are equally important in God's eyes. लेकिन नए करार में ये जो चीज है 10वां, जो भीतरी चेंज, ये परमेश्वर हमारे अंदर लाना चाहता। But the 10th commandment which requires an inward change, that God desires in us. ये एक चीज था लस्ट, लेकिन परमेश्वर ने उस कारण पूरे नियम को ही बदल दिया और ये पूरे 9 नियम में 2 चीज लाया परमेश्वर ने। तुम परमेश्वर से तन मन धन से, जो अंदर से आता है, और तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो जो तुम करते हो। So out of this 10 commandments, because only the 10th was not being followed, God brought a new covenant in which God gave only 2 things: that love the Lord your God with all your heart, mind and soul. That is a change from inward, and love your neighbor as yourself. क्योंकि परमेश्वर को हमारा भारी जीवन में बदलाव करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं था, वो कुछ लोग कर भी सकते अपने प्रयत्न से। God is not interested in bringing an outward change. Some people may be able to do that. परमेश्वर भीतरी चीज को बदलाव करना चाहता था। God wants to change us from the inside. क्या हमारा भीतरी जीवन बदला है ब्रदर्स? Has our inside life changed? ये बताता है कि हम नए करार में है, क्या जीवन जी रहे हैं या नहीं। And that will tell us whether we are living in the new covenant or भारी not. तौर पर हम बहुत सारा चीज अच्छा करते रहेंगे, On the outside, we may be doing many things very चोरी नहीं nicely. करते रहेंगे, झूठ नहीं बोलते रहेंगे, माता पिता का आदर करते रहेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करते रहेंगे, व्यभिचार नहीं करते रहेंगे, बहुत सारा चीज हम करते रहेंगे। We may be doing so many things. We may not be committing adultery. We may be honoring our father and mother. We may not commit murder or tell lies. We may be doing so many things. लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है प्रभु के नजर में, क्या अंदर से आप वो नहीं करना चाहते? But the thing which is important in God's eyes, that comes from within. अभी जैसे चोरी मत करो कहा गया है, Like it says that don't steal. अब क्या हम ऐसे लेते हैं, हाँ प्रभु ने कहा है चोरी मत कर इसलिए मैं नहीं कर रहा। So is it that we feel that God has said not to steal, so that's why I will not steal? या हम कहेंगे नहीं ये तो मुझे करना ही नहीं है क्योंकि प्रभु का स्वभाव नहीं है। Or do we say that, yeah, I will never do that because that is not my nature?
परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो ये स्वभाव मेरे अंदर भी नहीं होना चाहिए। because it's not in God's nature, so that's not even in my nature. ये है नया करार कि अंदर से हम नहीं करना चाहते। This is new covenant, that from within we don't want to do all those क्योंकि things, परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव करता है। because God has changed us from the inside. बाइबल कहता है संसार के संदरूक्ष न चलो, The Bible tells us don't walk according to the world, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वो इच्छाओं को जानते जाओ। but understand what God desires of you. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये नए करार के बारे में हम जब सुनते हैं, क्या हम सच में मेरा भीतरी जीवन बदला है क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण रखता है। So this is when we hear of the new covenant, it is important to understand whether our inward life has changed or और not. इसका टेस्टिमनी आप खुद दे सकते हो And about this testimony, you can see it yourself, कि आपके भीतर बदला है या नहीं। that whether you have changed from the क्योंकि inside or not. परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है। Because the Holy Spirit witnesses to our spirit, क्या हमारी आत्मा गवाही देती है कि मैं बदला हूं? and our spirit is able to give the testimony that yes, I have changed. अगर नहीं तो हमें रिपेंट करने की जरूरत है। And if not, we need to repent. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये बड़ा महान बुलाहट आपके और मेरे लिए है। So brothers and sisters, this great calling is for you and me. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पुराने करार में अपना प्रयत्न करते करते रहे, God doesn't want that we keep on living in the old covenant with our own लेकिन efforts. परमेश्वर चाहता है जब हम ये प्रयत्न करें उसमें परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे। But God wants to help us, that when we try to walk in His ways, that His Holy Spirit wants to help और us. जैसे भाई विजय ने कहा, मनुष्य के लिए असंभव है Like Brother Vijay said, that it is impossible with man, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। but it is possible with God. नए करार का वचन कहता है, मैं यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है Uh, उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। the new covenant, the Bible says that I can do all things through Christ who gives me strength. हाँ, परमेश्वर ताकत देता है तब मैं कर पाऊंगा। That if God gives me the strength, then I can do it. तो परमेश्वर से ताकत मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? So to get the strength from God, what do we need to do? हमको प्रभु के पास जाना पड़ेगा, We need to go to God. उसके कहना पड़ेगा प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, We need to accept that God, I can't do this by तब प्रभु myself. देगा। Then God gives us the अब्राहम को strength. ताकत कब प्राप्त हुआ? When did Abraham receive strength? जब तक वो प्रयत्न कर रहा था प्रभु ने अपना हाथ नहीं डाला। Till the time that he was trying himself, that God didn't touch him. लेकिन जब परमेश्वर से बात कर रहा था वो कहता प्रभु मैं मरा हुआ हूँ, But- सारा का गर्भ मरा हुआ है। But when God spoke to him after that, then Abraham said that my body is dead and even Sarah is bad. हेल्पलेस हूँ मैं। He said, I'm helpless. परमेश्वर बोला अब मैं करूंगा। Then God said, now I will work. जब तक हम वो हेल्पलेस एक जगह पर पहुंच नहीं जाते हैं Till we reach to the point of our helplessness, कि नहीं कर पा रहा, that yes, we're not able प्रभु to do मदद कर, it. God help me. तब परमेश्वर करेगा। Then God, जब तक हम करेंगे नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ, till the time we say, yeah, I can do it, परमेश्वर इंतजार करेगा। God is waiting. परमेश्वर मूसा के लिए इंतजार किया 40 साल, Just as God waited for Moses for 40 years. कर कर कर। That yeah, you keep on जब वो doing. तैयार हो गया उसके ससुर के अंडर उसको रख के नम्रता सिखाया, परमेश्वर बोलता अब तू तैयार है, अब आजा। Then when Moses started living with his father-in-law and became humble, हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि परमेश्वर बहुत लोगों के लिए इंतजार किया कि कब वो लोग बदलेंगे, कब वो लोग मेरा वेट करेंगे। many times in the old covenant we see that God waited for his people to be ready. आज भी प्रभु इंतजार कर रहे हैं Even now God is कि waiting. कब हम प्रभु के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं, That when will we come to God for his help, और तब परमेश्वर हमें सामर्थ देगा and then God gives us his और help, उसके सामर्थ से हमें नया करा जी सकेंगे। and with his help we can live in the new सो covenant. डियर ब्रदर सिस्टर, जो आखिरी जो चीज था लस्ट के ऊपर विक्ट्री सिर्फ परमेश्वर का आत्मा हमें दे सकता है। And the last covenant, the victory over that only God in his through his Holy तो Spirit can प्रभु give हम us. सबकी सहायता करे ये नए करार के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। May God help each one of us to walk in this new covenant. भाई विजय के द्वारा एक अद्भुत वचन कलीसिया को मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। So I thank the Lord for whatever we could hear through Brother Vijay. कहा कि नया करार में प्रवेश करने का आशीष क्या है। So he spoke about the blessings that we get when we enter the new covenant. जानते हैं जब हम हर रोज कुछ खाते हैं पीते हैं। So every day we eat something, we drink something. कल्पना करो आप एक मार्केट में गया, So imagine that we have gone to the market आपको उस दिन कुछ बटाटा खाना है, बैंगन खाना है, and you want to have some potatoes and you want to have some brinjal.
आप मार्केट में जाके कहेगा कि वाह ये बटाटा और बैंगन मेरे लिए बहुत ताकत मिलेगा। So you go to the market and you say that these potatoes and brinjal is going to give me good strength. आप कितना भी उस मार्केट के सामने इस पटाटा का बैंगन का तारीफ करेगा, वो आपको ताकत नहीं मिलेगा। So however you may praise, how much you may praise the potatoes and the brinjal in front of the market, सिर्फ उसके लिए आप कितना भी जानकारी आपके सर के अंदर रखेगा, वो आपको कुछ फायदा का नहीं रहेगा। if you have head knowledge about those vegetables, nothing is going to happen. जब तक आप उस पटाटा उस बैंगन को घर नहीं लाएगा और उसको पकाएंगे नहीं और वो पका हुआ चीज आपका शरीर के अंदर नहीं घुसेगा, आपको कुछ ताकत नहीं मिलेगा। So till you go and buy those vegetables, cook them and eat them, you won't have strength in your body. जानते हैं यीशु ने जॉन चैप्टर 5 वर्स 39 हम एक बार पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत वचन है। In John chapter 5 verse 39 we read, सो यहाँ पर लिखा है कि 39 जॉन चैप्टर वर्स 5 39 John chapter 5 verse 39. से इस तरह लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो You search the scriptures, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, for you think in them you have eternal life, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। and they are they which testify of me. फिर वर्स 40 In verse 40, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। and still you do not come to me that you might have life. जी तो कई लोग ऐसा है कि वो लोग बाइबल को सिर्फ अपने सिर पे ज्ञान के लिए रखते हैं, So many brothers and sisters are such that they keep the knowledge in their head, और उस सारी पवित्र शास्त्र किसकी गवाही दे रहे हैं? यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। and the entire Bible is testifying of Jesus Christ. सिर्फ आप उस गवाही को सिर पे रखेंगे, जैसे कि एक बटाटा एक बैंगन सिर्फ मुझे ताकत देते हैं, इतना ही आप जानकारी रखेंगे, वो आपको कुछ काम का नहीं रहेगा। So if we keep the knowledge of the Bible just in our head, just like we see the vegetables and we know that they are nutritional for us, हम जानना चाहिए कि मुझे अनंत काल का जीवन कहाँ से मिलेगा। we should know from where will we get eternal life. आप सिर्फ जानकारी से आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। We won't get eternal life only by head knowledge. जानता है नया करार में एक व्यक्ति यीशु के पास आया, So in the New Testament, one person came to Jesus वो यीशु से कहा मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। and he said, Jesus, I want eternal life. तो यीशु ने कहा कि माँ बाप का आदर करना, सब कुछ नियम पालन करना, सब कुछ बताया उसने। So he said that you have to follow the law, you have to honor your parents and all of the law that you have to follow. इन सारा नियम बताने के बाद उसने कहा कि मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। So when Jesus told him about all the law, he said, I am honoring all of this since my childhood. तब यीशु ने उनसे कहा कि आपके अंदर एक चीज कमी है। Then Jesus told him, there is one thing that is lacking in you. क्या कमी है? What is that? आपके पास सब कुछ जो कुछ भी है बेचकर कंगालों को दे दो। So you sell everything that you have and give it to the poor. जैसा किरण ने कहा कि आखिरी आज्ञा पौलुस को वो बहुत तकलीफ हो रहा था वो पालन करने के लिए। So just like Kiran brother shared that Paul was struggling with the last commandment to overcome it. जानते हैं उसके अंदर इतना पैसों की लालच थी, वो बेच के किसी और को कभी दिया ही नहीं, देना भी नहीं चाहता था उस आदमी। So he had so much lust that he would never sell something and give it to somebody else. बस बाकी सब कर रहे हैं, मैं माँ बाप का आदर कर रहा हूँ, 10 वर्ष दे रहा हूँ, कलीसिया में जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उपवास भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना लालच है वो छोड़ नहीं पा रहा हूँ। So I am going and honoring my parents. I am honoring all the law, but the last thing, that is to give up everything, I am not able to do it. मुझे लगता है कि अगर उस व्यक्ति उस सारा चीज बेचकर वापस यीशु के पास आता था, जरूर उसको बहुत दुगना मिल जाता था। So I imagine if that person would have given up everything and have sold everything and came to Jesus, he would be blessed. जानते हैं उस व्यक्ति बहुत निराश होकर उस यीशु की उपस्थिति से चले जाते हैं। So that person was very dejected and he went back. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप यीशु के बारे में सारा पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, लेकिन जो जीवन देते हैं उसके पास आना नहीं चाहते हो। So we read the entire Bible, brothers and sisters, but we don't want to go to Jesus who gives eternal life. पवित्र शास्त्र कहता है कि मेरे पास जीवन है।
So the word of God says that Jesus has got life. यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, So Jesus said, I am the way, the truth, and the life. मेरे सिवा पिता के पास कोई नहीं जा सकते हैं। Apart from me, you cannot go to the Father. सिर्फ आपके सिर के अंदर बहुत जानकारी रहेगा, So we have a lot of head knowledge. वो आपको कोई ताकत नहीं रहेगा, So we won't have strength. वो आपको कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा। It will not give us any strength. जानते हैं, पूरी जानकारी लेकर आप अपने आप को फूल सकते हैं। बाइबल कहते हैं कि नॉलेज आपको क्या करती है, फुला देती है। So when we have all this knowledge, we may get puffed up. We may have pride. प्रभु चाहता है उसके पास आए अनंत जीवन के लिए। The Lord wants us to come to Him for eternal life. प्रभु इन अंतिम दिनों में हम सबको मदद करे, पवित्र आत्मा हम सबको मदद करे कि हम यीशु को पकड़ के रहें। So in the end times, let the Lord help us that we may hold on to Jesus. प्रिय भाइयों बहनों, हम संसार में बहुत बुरी चीज हम सुन रहे और देख पा रहे हैं इस आजकल। So now in the world, we can see that there are many bad things happening. मैं आपको प्रोत्साहन करता, जो कुछ आपको मिला है I want to encourage you all, whatever you have received, उसको जोर से पकड़ो, please hold on to it. आप ताकत लगा के पकड़ो। Please hold on to it with strength. आपको यीशु मसीह मिला है, And you have got Jesus छोड़ो Christ. मत। Don't leave Him. मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, I do not want to leave वो Him. आने तक मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। Till He comes back, I don't want to leave भले Him. मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आएगा, बहुत तकलीफ आएगा, Though I may have lot of troubles and trials in my life, लेकिन मैं वो जो चीज प्रभु ने मुझे दी वो छोड़ना नहीं चाहता हूँ। but what the Lord has given to me, I do not want to leave it. तो प्रभु आप सबको मदद करें। May the Lord help each one of us. Why is everybody so serious? आप सब एक गंभीर आपके चेहरे से गंभीर जान पड़ते हैं। Have we heard something very heavy? क्या हमने बहुत ही वजनदार कुछ सुना है, भारी सुन लिया है? We can respond in many different ways to what we've heard. और हम कई अलग अलग तरीकों के द्वारा जो हमने सुना है उसका प्रति उत्तर दे सकते हैं। One way to respond is I've heard this so many times. और एक जो तरीका है वह यह है कि हाँ, ये जो मैं सुन रहा हूँ इसे मैंने पहले भी बहुत बार सुना है। It's like in Hindi they say बहुत सी दवाई ली लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि बहुत सी दवाइयाँ खाई है, ली है, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ है। One response could be that. एक जो प्रति उत्तर है वो ये हो सकता है। The second one could be that brother I tried but it's not working. और दूसरा प्रत्युत्तर ये हो सकता है कि हाँ, मैंने कोशिश तो की है लेकिन कुछ काम नहीं बन पड़ा। The third response could be और जो तीसरा प्रत्युत्तर है that I don't have it. Sorry? I don't have it, कि मेरे पास है नहीं, but I have a great desire to have it. लेकिन मैं बहुत ही इच्छुक हूँ, मैं लालसा रखता हूँ कि मेरे पास हो या मुझे मिले। How we look at, I always think of it as how we look at spiritual things and how we look at earthly things. और मैं अपने लिए यही सोचता हूँ कि हम कैसे आत्मिक बातों को समझते हैं, उन्हें लेते हैं, और कैसे संसारिक या भौतिक बातों को हम समझते हैं और लेते हैं। All of us who have attended job interviews, I hope you know what I'm talking about now in a few moments now. और जितने भी यहाँ पर जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो सभी जिन्होंने इंटरव्यू भी दिए हैं जानते हैं कि मैं आगे जो बात करूँगा वह क्या है। Suppose the interviewer says, in this job you'll get a nice flat. नाइस फ्लैट। Nice flat. और जैसे कि इंटरव्यू के दौरान जब आपसे यदि वह व्यक्ति है वह कहता है कि इस जो नौकरी आपको दी जाएगी इसमें आपको रहने के लिए मकान भी दिया जाएगा, Your eyes widen. तो Your eyes widen. और आप चकित होकर देखते हैं। Then he says that we will provide you a chauffeur-driven car. गाड़ी मिलेगी. ओके, एंड आपको सफर के लिए गाड़ी भी दी जाएगी। So would you say, अरे ये भी? और हमारा प्रत्युत्तर यह भी रहेगा कि हाँ, ये भी मिलेगा। Then the interviewer says, we'll give you a paid holiday for 1 month in the choice of, in your choice. Let's say Switzerland or, Kashmir or not Kashmir, maybe some other nice place. और साथ में वो इंटरव्यूअर आपसे यह भी कहता है कि आपको इस नौकरी के दौरान 1 महीने की पूरी छुट्टी भी दी जाएगी, जहां आपका मन चाहे आप विदेश घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। So I won't go on. I think you got what I'm trying to say. So मुझे लगता है कि आप अब तक समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। So the promises in the Bible are like that.
जो बाइबल में हमारे लिए प्रतिज्ञा हमसे की गई है वह इसी रीति से है, that our eyes will be pure like Jesus. और हमारी जो आंखें हैं वो पूरी रीति से जैसे यीशु की आंखें शुद्ध है हमारी भी शुद्ध हो जाएंगी, That no matter how much we are tempted, we will be able to have pure eyes. और भले ही हम कितना ही परीक्षा में या प्रलोभन में क्यों ना पड़े परंतु हमें ऐसी शुद्ध आंखें हमारी हो सकती है जैसे यीशु की है। All of us men know how difficult it is, और जितने भी पुरुष है यह जानते हैं कि यह बात कितनी कठिन है, but it is like that job interview or that, oh, this is also possible. और यह बिल्कुल उसी समान है जैसे वह जॉब इंटरव्यू हमसे वायदा करता है कि यह भी संभव है That I can forgive every single person. कि मैं हर एक व्यक्ति को क्षमा कर सकूंगा, That I, from my heart, I will wish good for, like we sang, प्रभु यीशु ने जिसने उसे ठुकराया उनको भी उन्होंने माफ किया। और जैसे हमने उस गीत में भी कहा कि यीशु ने ठुकराया उन्हें हम क्षमा करते हैं, ये भी कर सकते हैं। और हम चकित होकर कहेंगे कि यह भी संभव है। We can have this attitude or we can have the opposite, which is अरे ये भी करना है। और ऐसा हमारा प्रत्युत्तर या स्वभाव हो सकता है कि यह भी हम कर पाएंगे या अरे ये भी करना है। When it comes to earthly things, we never say, oh, you will give me a car also. Oh, और क्योंकि जब भौतिक वस्तुओं के देने की बात आती है और जब हमसे कहा जाए हमें कार भी मिलेगी, अच्छा कार भी दोगे आप, and every year you will give me a bonus also. Oh, और हर साल में हर वर्ष मुझे बोनस भी मिलेगा, अच्छा ये भी तुम दोगे। we never look at earthly things like that. But when it comes to spiritual things, why we are so lethargic? और हम जब देखते हैं कि भौतिक वस्तुओं की बात आती है हमारा प्रत्युत्तर बिल्कुल ऐसा नहीं होता, तो जब आत्मिक बातों की बात आती है तब हमारा प्रत्युत्तर क्यों इतना सुस्त पड़ जाता है। So I am very, very thankful for this message that we heard today. और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ आज के इस संदेश के लिए जो वचन आज सुना है, That this new covenant life can be ours, not by our own strength. और कि ये नए वाचा का जो जीवन है यह हमारा हो सकता है बिना हमारी संघर्ष या हमारी सहायता के। That God longs to give this to each one of us. और परमेश्वर बहुत ही बड़ी लालसा रखता है हम में से हर एक व्यक्ति को यह जीवन देने के लिए। But Jesus said, when I come back, will I find faith? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा? Will the people will be thirsting for this life or will be thirsting for things of this world? और क्या वे इस जीवन को पाने के लिए भूखे और प्यासे होंगे या इस भौतिक संसार की बातों को पाने के लिए लालसा से भरे होंगे? See, the good thing that Jesus himself promised is और एक अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह स्वयं ने यह हमसे प्रतिज्ञा की है that if we desire for spiritual things the way we desire for earthly things, he will give earthly things as free. और यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा हमसे की है कि जैसी लालसा हम भौतिक संसार की बातों को पाने के लिए रखते हैं, बिल्कुल वैसी लालसा यदि हम आत्मिक बातों को पाने के लिए रखें तो जो संसार की बातें हैं यीशु मसीह हमें ऐसे ही मुफ्त में दे देंगे। I've tasted a little bit of it. और मैंने इसका थोड़ा सा ही स्वाद चखा है I'm not at all satisfied. और मैं बिल्कुल भी इससे संतुष्ट नहीं हुआ हूँ I have a long way to go. और बहुत लंबा सफर बाकी है तय करना। And I know the Lord has many wonderful things for me and for each one of us. और मैं यह भी जानता हूँ कि परमेश्वर ने और भी अद्भुत बातें हमारे लिए, मेरे लिए और आप सभी के लिए रखी है। But will we seek for these things? लेकिन क्या हम इन बातों की खोज करेंगे Or we will continue to, seek after the earthly things? या हम जारी रखेंगे भौतिक संसार की बातों की खोज करने में? That is a question that we need to ask. और यह वह प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछना है। And Jesus has promised, if you thirst like this, और जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम इस प्रकार से प्यासे हो then rivers of living water will flow through your life. तब जीवन जल की जो नदियां है वह तुम्हारे हृदय में से बह निकलेंगी। And I don't know if any other thing can be as exciting as this. और मुझे नहीं लगता कि इससे और भी कोई दिलचस्प की बात हो सकती है। So, brothers and sisters, let us shake off. तो आइए भाई और बहनों हम अपने आप को टटोल कर देखें। Shake off discouragements. यह जो सारी निराशा है, Shake off our laziness. हमारा जो भी आलसीपन है उसे दूर करें, Shake off all our pride. हमारा जो भी घमंड है उसे हम दूर करें And let us run this race. और आइए इस दौड़ को हम दौड़ें।
that we may all receive the prize. ताकि हम सभी जो है उस पुरस्कार को जो रखा गया है उसे प्राप्त करें। May God really help us. और परमेश्वर वास्तव में हम सभी की सहायता करें। Amen. आमीन। So we heard about just now what really stirs our desires. अब हमने ऐसा वचन सुना है जो कि हमारे इच्छाओं को पूरे से हिला देता है। So there are so many things in the Word of God which we can be attracted to. परमेश्वर के वचन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी ओर हम आकर्षित हो सकते हैं। We can be attracted to the gifts that God gives us. हम जो परमेश्वर हमें वरदान देते हैं उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। The Word of God promises health, and the Word of God promises blessings for us. परमेश्वर के वचन में हमारी सेहत के लिए हमारी आशीष के लिए वचने हैं। So there are so many things, good things that God promises for us. ऐसे बहुत सारी भली बातों की वायदे परमेश्वर ने हमें दिए If हैं। you seek the kingdom of God first, then all these things shall be added to you. यदि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज पहले करोगे तो बाकी सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। We can pray for the healing, we can pray for the good of our family, and so many things. हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे घर के भलाई के लिए, बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। But the core, the most important thing which the Word of God says, if we desire, परमेश्वर के वचन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा गया है जिसकी हमें इच्छा होनी चाहिए is 2 Thessalonians 2:14. वो है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14। 2 Thessalonians 2:14. I hope we can remember this verse. मैं आशा रखता हूँ कि इस वचन को आप याद रख सकते हैं। It was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे जो समाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। And the glory of Jesus Christ is the life of Jesus. यीशु मसीह की महिमा क्या है? वो यीशु मसीह का जीवन है। Yesterday in our Bible study we saw कल हमारा जो बाइबल का अध्ययन हुआ था उसमें हमने देखा in 1 John 1:2, पहला यूहन्ना 1:2 में, and the life was manifested, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father was manifested to us. यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। The Apostle John was attracted to that life. प्रेरित यूहन्ना जो है उस ज्योति की तरफ आकर्षित हुए। That life was manifested to us, and we have seen and we have heard. He was so excited about that. जो जीवन हमें हमारे सामने दर्शाया गया उसकी तरफ हम आकर्षित हुए, हम बहुत उत्सुक हो गए उसे देखकर। So the Word of God has got much to tell about that. और परमेश्वर के वचन में ऐसे The Word of God has got much to tell about this also. और इसके बारे में परमेश्वर के वचन में और भी बहुत कुछ कहने के लिए है। But how many of us are attracted? How many of us here are attracted to that life of Jesus? पर हम में से यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन की तरफ आकर्षित हैं? That is the key to the Christian life actually. मसीही जीवन का जो चाबी है वही है। All the other things are periphery. बाकी सारी चीजें हल्की बातें हैं। And then if we have this as the greatest thing in our life, then what we heard today we will be able to understand. यदि ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है तो आज हमने जो सुना है उसे हम समझ पाएंगे। Otherwise we will not be able to understand what we have heard today. नहीं तो हमने आज जो सुना है उसके बारे में हम समझ ही नहीं It पाएंगे। will become more and more clear, brothers and sisters. मैं आशा रखता हूँ ये आपके सामने स्पष्ट है भाई So I बहनों। thank God that there are hungry hearts here. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे भूखे हृदय हैं। I thank God for these brothers who brought this revelation about the life of God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इन भाइयों के लिए जिन्होंने परमेश्वर का ये जो प्रकटीकरण है वो हमारे सामने लाया। It didn't come from the mind, it came from the heart. ये उनके दिमाग के द्वारा नहीं आया, उनके हृदय के द्वारा आया है, May many brothers and sisters experience this. ताकि ये बहुत सारे भाई बहन अनुभव कर पाए। You know how it comes? आप जानते हैं कहाँ से आएगा ये? God's word, when we hear it, that gives us faith. परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो वो हमें विश्वास देता है। So we are going to speak about it, and you will get faith. और हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको विश्वास मिलेगा। All of us got faith like in the same manner. हम सभी के पास भी वैसा ही विश्वास आया है। Thank God, there is great hope for all of us. परमेश्वर की स्तुति हो कि हम सभी के लिए बड़ी आशा है। Amen.